Hello, good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the next MCQ of the topic definite integration. In previous sum theory lecture we completed first 55 MCQs of these topics. It means we have to start the next MCQ, that is 56. So let's start the MCQ number 56. So this is MCQ number 56. Integration from pi by 4 to pi by 3 sin x upon sec x upon sin x, sec x upon sin x. So this is MCQ number 56, sec x upon sin x. So sec x is the reciprocal of cos x. So here we write pi by 4 to pi by 6, 45 degree to 60 degree, pi by 3. Sec means 1 by cos, sin x into cos x. So यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 आउटसाइड. इंटीग्रेशन फ्रॉम pi by 4 to pi by 3 to sin x into cos x is sin 2x. sin 2x का रेसिप्रोकल cosec 2x. cosec 2x. So integration of cosec is log of tan pi by 4 minus 2x. What is the integration of cosec x? So that is the log of tan pi by 4 minus 2x divided by 2. x का coefficient upon 2 from tan x by 2 होता है. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is tan x by 2. इंटीग्रेशन ऑफ cosec x is tan x by 2 to x by 2 from pi by 4 to pi by 3. pi by 4 to pi by 3. pi by 4 to pi by 3. So here this 2 and this 2 cancel. This upon 2 is a coefficient of x. cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of tan x by 2. cosec x का और एक फॉर्मूला दैट इज log of tan log of cosec x minus cot x, और दूसरा कौन सा होता है? log of tan x by 2. so यहाँ पर x कितना है? 2x है. so 2x by 2 is x. so this upon 2 is what? this is a coefficient of 2x, that is a coefficient of x, right, always in the denominator. so this becomes 2 cancel. log of pi by 3, log of tan pi by 3 minus log of tan x pi by 4, log of tan pi by 4. so tan pi by 4 1, log 1 is what? 0. tan 60 की वैल्यू √3 होती है. tan 60 डिग्री. tan 30 is what? sin 30 upon cos 30. sin 30 is 1 by 2, cos 30 is √3 by 2. 2 cancel, 1 by √3, that is the tan 30. What is the value of tan 60? tan 60 is √3. so this answer is √3, log √3 or 1 by 2 log 3. 1 by 2 log 3 or log √3. so this is answer, log √3. so answer कितना है यहाँ पर? B है. got it? so this is 56. now 57. in example number 57, integration from 2 to 3, 1 upon x into x cube minus 1 dx. ऊपर प्लस 1 है तो उसको प्लस 1 को मैं क्या करता हूँ? देखो, x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस 1, ये प्लस 1 एज इट इज, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब किया. दिस इज 2 to 3. सेपरेट डिवाइड करो, सो दैट बिकम्स x cube divided by x into x cube minus 1 dx minus 2 to 3 x cube minus 1 upon x into x cube minus 1 dx. so this x cube minus 1 cancel. integration of 1 by x is log x from 2 to 3. so this plus x and this x cancel it because x square, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है. सो 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, सो इंटीग्रल बिकम्स लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, log of x cube minus 1 from 2 to 3. this 1 by 3 as it is. 27 minus 1 26. 26 by 2. 26 by 8 minus 1 is what? 7.
सो माइनस लॉग 3/2। सिर्फ इसको सॉल्व करो, ये एग्जाम्पल रिपीटेड है, एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल हुआ है। ट्राई टू सॉल्व दिस, यू विल गेट द फर्स्ट आंसर 1/3 इंटू लॉग 3/2 208 अपॉन 189। सो 57 का आंसर कितना बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा आफ्टर सोल्यूशन ऑफ दिस। तो इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 56, 57। नाउ लेट्स सी द 58 एंड 59। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ टू स्टार्ट, या उसको स्टार्ट कैसा रहेगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन, जजमेंट और लॉजिक इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? So let's see the second example. Next means what? 58 now. So integration from 0 to 1. Look at the MCQ number 58. X square into under root 1 minus x square dx. X square into under root 1 minus x square. So we can solve this example by using property. It's 0 to 1 है, this is 58 now. So 0 to 1 है, तो we can write 1 minus x whole square. So under root 1 minus x whole square. So I think यहाँ पर 1 minus x square नहीं होगा, यहाँ पर x होना जरूरी है, x ही होगा यहाँ पर, x not possible. So this is 0 to 1 minus 2x प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करेंगे, 1 minus 1 कैंसिल प्लस x रेस टू हाफ dx, x रेस टू हाफ से मल्टीप्लाई करें, x रेस टू हाफ माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 3/2 प्लस x रेस टू 5/2, x रेस टू 3/2 अपॉन 2/3 इंटू 2/3 माइनस 2 इंटू एक्स रेस टू 5/2 इंटू 2/5, x रेस टू 7/2 into 2/7 from 0 to 1. So इसका इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेशन from 0 to 1. Now it's a part of calculation now. It's a 2/3, it's a 4/5, it's a plus 2/7. This is a minus b whole square, a square minus 2ab plus b square. 1 minus 1 cancel, minus into minus plus x, x raised to root x means x raised to half. मल्टीप्लाई किया, देन उसका इंटीग्रेशन निकाला, अपॉन 7/2 अपॉन 5/2 अपॉन 3/2, इट मीन्स 2/3 2/5 2/7। सो अब यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करना है। सो देखो कैलकुलेशन कितना आता है इसका, इसको सॉल्व करो कंप्लीट, पार्ट ऑफ कैलकुलेशन, ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। ओके, अब मैं ज़्यादा कैलकुलेशन कंप्लीट अप टू लास्ट स्टेप सॉल्व करके नहीं दूंगा, इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको सॉल्व करो। अब मैं इसको अब पे छोड़ता हूँ इसको मैं। नाउ एग्जांपल नंबर 59, MCQ नंबर 59, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1/√2 x इंटू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 minus x square dx. सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा, x इज इक्वल टू साइन t हो जाएगा, x इज इक्वल टू साइन t, x की जगह पर साइन t, दिस इज t, रिमेनिंग इज dt, साइन 0 0, साइन 1/√2 π/4, 1/√2 वैल्यू साइन के टेबल में 45 डिग्री में, सो इट इज अ π/4। So LIAT, this is by parts, LIATE. So पहले अलजेब्रिक होना चाहिए, 0 to π/4, first t then sin t. So make it the correct order, because first in by parts method this is the order of selection of the function. First must be algebraic, second is what, trigonometric. So trigonometric बाद में है। Integration of sin t is minus cos t from 0 to π/4 माइनस 0 to π/4, t का डेरिवेटिव 1, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस t, π/4 माइनस साइन बाहर π/4, कॉस π/4 1/√2, 0, कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t फ्रॉम 0 to π/4. सो दिस इज माइनस 1/√2 π/4 माइनस प्लस 1/√2. सो दिस विल बी द आंसर। बस हमें इसको चेक करना है, π/4
आप देखो यहाँ पर π/4 प्लस π/4 माइनस 1/√2 कॉमन लो, दैट बिकम्स π/4 माइनस 1 माइनस π/4, 1 माइनस π/4, ये करेक्ट आंसर है, बट उन्होंने कॉमन ले नहीं है। π/4 cos π/4 is 1/√2, 0 into 1 is 0, this term is 0, first term is okay, this is minus 1/√2 sin pi, that is π/4, minus 1/√2 π/4, sin π/4 is 1/√2, sin 0 is 0, so this is आंसर। अब इसको कन्वर्ट करो आंसर में, π/4 माइनस 1/√2, नहीं पॉसिबल नहीं, 59 का आंसर। आई विल चेक फ्रॉम द आंसर की, 59 का आंसर बी है, π/4 प्लस 4√2। देखो इस पर सिंप्लीफाई करेंगे, चलो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/√2 माइनस 1/√2 π/4, सो 4√2 इज द एलसीएम, 4√2, सो इसको 4√2 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई प्लस 4√2, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, सो दिस इज करेक्ट। ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा ना, 1/√2 राइट, सो यही आंसर है, 4 माइनस पाई अपॉन 4√2, ओके। सो यहाँ पर माइनस साइन होना जरूरी है, सो विल टेक नाउ नेक्स्ट नंबर 60। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 59 नाउ स्टार्ट 60। सो देखो कैलकुलेशन परफेक्ट करो, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द ऑप्शन। What will be the example number 60 now? In 60 there is some correction. Example number 60, he has given integration from 0 to 1, f of x dx is equal to 1, integration from 1 to 2, f of y dy is equal to 2। यहाँ पर ये 0 to 2 दिया है, उसको 1 to 2 करो। और नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, 0 to 2 f of z dz। So f of x dx, f of y dy, f of z dz, the variable doesn't matter, this is a property, property number first, property number second। इसको हम ऐसे करेंगे, 0 to 1 करेंगे और 1 to 2 करेंगे। f of z dz को समटाइम्स f of x dx लिखेंगे यहाँ पर, और f of y dy लिखेंगे। f of x dx is 1, f of y dy from 1 to 2 is 2, 1 plus 2 is what, 3। So 0 to 1, 1 to 2, this applicable property number third, 1 is less than 2 and greater than 0। So what will be answer, 1 plus 2 is 3। So option कितना है, D है, okay। So this is the fundamental concept of different integration। ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादातर आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 60 ऐसे, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 60। नाउ 61 एंड 62। देखो 61 62 क्या है। In example number 61, we can apply the property. It is shortcut. 61, it's a property, shortcut. Integration from 0 to π/2, 1 upon 1 plus root tan x और 1 upon 1 plus root cot x। ये सब टाइप का आंसर कितना होता है, π/4, बट कंडीशन इज व्हाट, इट इज एब्सोल्युटली 0 to π/2 ही होना जरूरी है। रूट tan x, रूट cot x चलेगा, इसका आंसर कितना है, π/4। रूट sin x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x, रूट cos x अपॉन रूट sin x प्लस रूट cos x, ये सब कैटेगरी के एग्जाम्पल का आंसर कितना होता है, π/4। सो हियर द आंसर ऑफ 61 इज व्हाट, π/4। ऑप्शन नंबर कितना है, सी है। नाउ 62, व्हाट इज 62? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x log of tan x। so we can apply the property here, property number 4। x की जगह पर π/2 माइनस x रखेंगे, x की जगह पर π/2 माइनस x। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2 into π/2
माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स, सो 2 कैंसल 2x, सो पाई माइनस 2x, सो साइन 2x, 180 माइनस थीटा, सेकंड 180 माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही होता है, वो भी पॉजिटिव, सो सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेकंड पॉजिटिव, साइन 2x, log of tan x, tan की जगह x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स, so log of tan x becomes log of cot x, because of what, tan pi by 2 minus x is cot x, equation first, equation second, okay, so now यहाँ पर एडिशन करेंगे 0 to pi by 2, एडिशन करने के बाद साइन 2x कॉमन लेंगे, ये i इज इक्वल टू, ये भी i इज इक्वल टू, सो i प्लस आई 2i, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड की एडिशन करने के बाद साइन 2x कॉमन लेंगे, log of tan x प्लस log of cot x, log of tan x प्लस log of cot x is log of tan x into cot x, log of tan x into cot x. After adding this, this becomes log of tan x plus log of cot x. Log की प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद log of tan x into cot x, and tan x into cot x are reciprocal of each other, that will be cancel. Here becomes log 1. Log 1 is 0. 0 into this is 0. So 2i is equal to 0 means what is I is equal to 0. So this is important example. Integration of 62 is what? 0. So this is the property of फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी, फोर्थ और फिफ्थ होंगी पाई बाई टू माइनस एक्स, एक्स की जगह पर पाई बाई टू माइनस एक्स, बिकॉज अपर लिमिट इज व्हाट, पाई बाई टू, एंड लोअर लिमिट इज 0, सो दैट्स व्हाई इट इज पाई बाई टू माइनस एक्स. tan पाई बाई टू माइनस एक्स इज कॉट एक्स, दिस इज अ पाई माइनस 2x, बिकॉज यहाँ पर 2x है तो पाई माइनस 2x बन जाएगा, साइन पाई माइनस 2x इज साइन 2x, बिकॉज दिस इज इन द फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, साइन बिकम्स पॉजिटिव. सो आंसर ऑफ 62 इज 0. नाउ 63 देखो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 है, x इंटू 1 माइनस एक्स रेस टू 3 बाई 2. यहाँ पर भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 to 1, x की जगह पर 1 माइनस एक्स, x की जगह पर 1 माइनस एक्स, माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, एक्स रेस टू 3 बाई 2. इट्स वेरी सिंपल, एक्स रेस टू 3 बाई 2 माइनस एक्स रेस टू 5 बाई 2 मल्टीप्लाई के अंदर. अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, x रेस टू 5 बाई 2 अपॉन 5 बाई 2, x रेस टू 7 बाई 2 अपॉन 7 बाई 2. सो अपॉन 7 बाई 2 इट्स इंटू 2 बाई 7, सो 1 रखो, 2 बाई 5 माइनस 2 बाई 7, 0 के बाद 0 होगा, 14 माइनस 10 बाई 35, सो 4 बाई 35 इज द आंसर. सो 63 का ऑप्शन क्या है, 4 बाई 35, सी ऑप्शन. गॉट इट. So 61, 62, 63. So ये प्रॉपर्टी हो गए. Now we have to solve the example number 64. So try to solve number 64. यहाँ पर भी हमें शॉर्टकट अप्लाई करनी है, शॉर्टकट नहीं प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. 0 to पाई बाई 2 है तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो. ट्राई टू सॉल्व नंबर 64. आपको मैंने हिंट दी है, सो आप स्टार्ट करो 64. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखता हूँ 64. देखो क्या एग्जाम्पल है 64. लुक एट द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सो जस्ट इमेजिन इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी, सो दिस आई बिकम्स 0 to पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, sin pi by 2 minus x cos x, cos pi by 2 minus x sin x. So this equation first, this equation second. If we adding this equation first and second, both having same denominator, 1 plus sin x into cos x, 1 plus sin x into cos x. Sin into cos, cos into sin are to be same. So denominator तो same है, so numerator की addition बहुत simple है, sin x minus cos x, sin x minus cos x plus cos x minus sin x.
माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस कैंसल, न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर वॉट एवर इट मे बी, इट बिकम्स 0. So 2i is equal to 0, this implies I is equal to what? 0. So this is a magic property. Property से एग्जाम्पल बहुत इजीली सॉल्व होता है. जस्ट विच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई करना है, ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. लोअर लिमिट 0 है तो दैट एग्जाम्पल डेफिनेटली प्रॉपर्टी नंबर 4 का है. गॉट इट. अपर लिमिट π/2 है तो वहाँ पर साइन कॉस और टैन कॉट है तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी अप्लाई करना है. ठीक है. सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट 64. नाउ 65. 65 क्या है देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to +2 x³ डिवाइडेड बाय 4 - x². निगेटिव पॉजिटिव, ये जो दिस इज अ लास्ट प्रॉपर्टी, इवन और ऑड फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दिस इज इवन और ऑड. सो इवन ऑड चेक करने का सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट रिप्लेस x बाय -x. अगर x की जगह पर -x रिप्लेस किया तो -x का क्यूब इज -x³, -x का स्क्वायर इज x². सो दिस बिकम्स -f of x. f of -x is equal to -f of x. So this function becomes what? Odd. If function is odd, integration is what? 0. So how to check the even or odd function? It is very simple procedure. Just replace x by -x. If replace x by -x, if it is give negative f of x, that is odd function. It is the same f of x, that is even function. Okay. So if it is a odd function, then integration is how much? 0. So this is a example number 65. So let's start 66. अब 66 क्या है देखो, $66 भी प्रॉपर्टी नंबर लास्ट है, इवन ऑड फंक्शन, बिकॉज वहां पर -π/2 to +π/2 है. देखो एग्जाम्पल नंबर 66. इंटीग्रेशन -π/2 to +π/2 sin raised to 4x डिवाइडेड बाय sin raised to 4x plus cos raised to 4x. So this is a even function, that's why it is a double from 0 to π/2. ऑड रहता तो इट इज अ 0, बट डायरेक्टली इवन कैसे है? साइन रेस्ट टू इवन पावर है, साइन रेस्ट इवन पावर, दैट इज इवन फंक्शन. ये तो ऑलवेज इवन होता है. cos x इज ऑलवेज इवन फॉर इवन पावर और फॉर ऑड पावर. ओके. सो दिस इज साइन रेस्ट टू 4x, दिस इज अपॉन साइन रेस्ट टू 4x प्लस cos रेस्ट टू 4x. नाउ हियर we can use the shortcut. Answer of such type of integrals is π/4. So what is answer? π/2. ये टाइप की जो एग्जाम्पल है वो शॉर्टकट है, उसका आंसर π/4 होता है, बिकॉज 0 to π/4 sin raised to nx अपॉन sin raised to nx plus cos raised to nx dx is always π/4. 2 into π/4 is what? π/2. सो आंसर कितना है उसका? डी ऑप्शन बनेगा π/2. ओके. नाउ 67. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट साइन एक्स. ये भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. 0 to π है, cos x की जगह पर π - x रखेंगे. cos π - x इज माइनस cos x, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, माइनस cos x. sin π - x इज sin x. सो I is equal to -i, 2i is equal to 0, I is equal to what? 0. वेरी सिंपल. यहाँ पर π - x, cos π - x इज माइनस cos x, sin π - x इज sin x. डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस है माइनस है, 0 हो जाएगा. सो I इज इक्वल टू कितना? 0. सो 67 का आंसर कितना है? 0 है. ओके. नाउ वी कैन अप्लाई द एग्जाम्पल नंबर 68. देखो 68 क्या है? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan ऑफ 2x - 1 dx. सो यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. tan x की जगह पर क्या? 1 - x -1 एज इट इज. 0 to 1 है.
यहाँ पर 0 to पाई था, सो पाई माइनस एक्स, 0 to 1 है 1 माइनस एक्स, 2 minus 2x minus 1, 2 minus 1 is 1, 1 minus 2x, सो ये 2x माइनस 1 है, ये 1 माइनस 2x, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, सो दैट इज माइनस tan ऑफ 2x माइनस 1, so this is a 0 to 1, so this is I, so this is minus I, so I is equal to minus I, so I implies what? 0, to I is equal to 0 means I is equal to 0. सो प्रॉपर्टी 68 का भी आंसर कितना आया? 0 आया. ओके, सो यहाँ पर भी 0 to 1, 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई, सो ये सब प्रॉपर्टी नंबर कितना है? 4th है. ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व वेरी इजीली बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 68. नाउ लेट्स स्टार्ट 69. अब 69 में क्या है देखो, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 है. सो माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, पहले अंदर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. देखो क्या फॉर्मूला है वहां पर, क्या है एग्जाम्पल नंबर 69, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x, इट्स अ 2 साइन स्क्वायर x, 2 आउटसाइड ले लो, माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 साइन x, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट साइन x, सो इट्स साइन x इज अ ऑड फंक्शन. साइन x कैसे ऑड फंक्शन है? बिकॉज माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 साइन x ऑलवेज ऑड फंक्शन, कॉस x इज इवन फंक्शन. सो इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए इसका? 0 आना चाहिए. यहाँ पर 0 तो आंसर नहीं है, ये रूट 2 है बाहर, अंडर 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x, रूट 2 बाहर, रूट साइन स्क्वायर x, रूट साइन स्क्वायर x इज साइन x. सो यहाँ पर तो 0 आंसर नहीं है. सो I इज इक्वल टू ये रूट 2 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, कॉस 90 इज 0, सो 0 आंसर आना चाहिए. 1 माइनस कॉस रूट x, कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, 2 साइन स्क्वायर x. देखो चेक करो 69 क्या है, यहाँ पर तो आंसर 0 आना जरूरी है. माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2 है. साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, सही तो जा रहा है, 0 टू पाई बाय 2. अगर ये तो फंक्शन ऑड है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 0, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 भी 0. टू साइन स्क्वायर x. ओके, लेट इट बी. ट्राई करो क्या एग्जाम्पल है, नंबर 70 ट्राई करेंगे. मिस्टेक वहाँ पर 2-3 बार चेक किया, आंसर तो 0 आना चाहिए. 70 माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4 साइन स्क्वायर x. साइन स्क्वायर x इज अ इवन फंक्शन, दैट्स वाई इट इज अ डबल 0 टू पाई बाय 4 साइन स्क्वायर x. ओनली साइन x रहता तो इट्स ऑड, बट इज अ साइन स्क्वायर x, सो इट्स अ इवन फंक्शन. साइन स्क्वायर x इज नॉट इंटीग्रेबल, सो हम उसको क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ये 2 और ये 2 कैंसल. सो 1 माइनस कॉस 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x. सो इट इज अ 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4. अपर लिमिट पाई बाय 4, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1 बाय 2, बाकी 0. पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2,
Sine square x is even function, that's why it is double, 0 to pi by 4. So sine square x is not integral, 1 minus cos 2x by 2, 2 to a2 और a2 cancel, 0 to pi by 4, 1 minus cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi by 4 ही है. 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का sin 2x by 2 pi by 4, sin pi by 2 1 by 2, ये करेक्ट आंसर है. ओके ये भी 69 70 का आंसर मैच नहीं हो रहे, लेकिन आप ट्राई करो, अपना आंसर डेफिनेटली करेक्ट ही है. ओके सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 70. ओके विल टेक नेक्स्ट. So this is the completion of 70 example. So from 56 to 70 means we have completed 15 example, 15 MCQs. So this is the sufficient for today's video lecture. We will continue on from next video lecture from MCQ number 71. So stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So I will stop here. Thank you very much.